آپ نے مہارت کے ساتھ، ٹیکنیکل انوویشن کے ساتھ آپ نے یہ جنگ لڑی ہے اور آپ نے ایئر فورس کو لیڈ کیا ہے. آپ نے جو فادر آف ایئر فورس ایئر مارشل اصغر خان کے بعد ایئر مارشل شمیم انور، جو انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، آپ نے جدید ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل جو آپ نے چیک کیا ہے اس ایئر فورس میں، پوری قوم آپ کی اس کنٹریبیوشن کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے اس پوری جنگ کو لیڈ کیا، ہماری آرم فورسز کی قیادت جو یہاں پر بیٹھی ہے اور یہاں پر ایئر فورس کے جو شاہین بیٹھے ہیں، بحری فورس کے ہمارے جو وہ جوان ہیں اور بری فورس کے، اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کی مشاورت شاید اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے. میں اس تاریخ کے ان اوراق کا گواہ ہوں جہاں پر کنسلٹیشن میں ماضی میں فقدان تھا. But this is not the time to tell those painful stories. This is the time to congratulate you and convey you what the international community feels about you. دشمن کے جنگی جنون کا بخار اتار دیا. 10 مئی کو پاکستان نے خطے کے نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا. پاکستان نے یہ جنگ اپنی تکنیکی مہارت سے جیت لی. پاک فضائیہ نے 3 رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے خاک میں ملائے. پاکستان نے جس طرح بھارت کے غرور رافیل کو مٹی میں ملایا، مودی اسے قیامت تک یاد رکھے گا. کامرا ایئر بیس پر وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کے افسران سے خطاب. بولے، بزدل دشمن نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا. دشمن کو پیغام دے دیا، دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو پاؤں تلے رون دیں گے. وزیر اعظم کا کہنا تھا، مقبوضہ کشمیر کی عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا. ہر تحصیل کے اندر، ہر شہر کے اندر، اسپیشلی ان جگہوں پر جہاں زراعت کے جو ہبز ہیں، وہاں پر رینٹل مشینری کے پورے وہاں سے اویلیبل ہونی چاہیے. آپ کے جو ٹیوبویلز کی سولرائزیشن ہے، اگر آپ کو 10 kV کا آپ کا سولر کا سسٹم ہے، اس میں آپ کو 95% سبسڈی ہم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ 5,50,000 کا ہے، اس میں 5 لاکھ روپیہ ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ کے بجلی کے بلوں سے، ڈیزل سے وہ آپ کی جان چھوٹے. جو 15 kV کا ہے وہ تقریباً 6-6.5 لاکھ کا ہے، اس میں بھی 90% سبسڈی ہم دے رہے ہیں. اور جو 20 kV کا ہے وہ تقریباً 10 لاکھ کا، اس میں بھی 90% سبسڈی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. پنجاب حکومت کے گندم کے کاشتکاروں کے لیے اہم اعلانات. ہر تحصیل میں رینٹل ایگریکلچر مشینری سینٹر قائم کرنے کا اعلان. کسان کارڈ کے ذریعے لون 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ کر دیا. وزیر اعلیٰ کا زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن پر 95% تک سبسڈی کا اعلان. کسان کارڈ نہ رکھنے والے کاشتکاروں کے لیے ہیلپ لائن سسٹم لانچ کیا جائے گا. آئندہ سال 20,000 کاشتکاروں کو سبسڈی پر گرین ٹریکٹر بھی دیے جائیں گے. فیصل آباد کا سب سے بڑا انتظامی دفتر بھی دہاڑی دار ملازمین کے رحم و کرم پر آ گیا. ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈیلی ویجز ملازمین سے کام چلایا جانے لگا. سوشل ڈیفنس، ریسکیو اور PHA سمیت دوسرے محکموں کے ڈیلی ویجز ملازمین کو ڈپٹی کمشنر آفس میں کام پر لگا دیا گیا. کسی کو فائل نہ ملی تو کسی کو سائلین کے مسائل کو سمجھنے میں مشکلات. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مستقل حل کی درخواست کر دی. چنیوٹ کے اکاؤنٹ آفس میں چیک بک ختم ہوئی، کئی روز گزر گئے. محکمہ سول ڈیفنس سمیت سینکڑوں ڈیلی ویجز ملازمین کو 1.5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملی. گھروں کے چولہے ٹھنڈے، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی. ملازمین کی دہائیاں. فیصل آباد کے ملازمین کا پنجاب حکومت کے طے کردہ 37,000 روپے اجرت ماہانہ مانگنا جرم بن گیا. ٹیکسٹائل مل نے 16 ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا. کمپنی کی ہٹ دھرمی، جبری طور پر نکالے گئے ملازمین کو 1 ماہ بعد بھی تنخواہ نہ دی، نہ ہی واجبات ادا کیے. لیبر قومی موومنٹ کا لیبر ڈپارٹمنٹ کے باہر احتجاج. وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی التجا. ایکسپورٹ فائنینس اسکیم پر صنعت کاروں کے تحفظات ختم نہ ہوئے. حکومتی کمیٹی کوئی فیصلہ نہ کر سکی. پاکستان میں ضرورت سے زیادہ یون کے بعد گرے کلاس کی درآمد شروع. یون مارکیٹ میں جاری مندہ تھم نہ سکا. سینئر نائب صدر چیمبر کیسر شمس گچھا کہتے ہیں کہ لوکل مارکیٹ تباہ ہو رہی ہے اور حکومت
खामोश तमाशाई है। एक तबका जो है वो सख्त मुश्किलात में है, जैसा कि हमारी पाकिस्तान यार्ड मेंट एसोसिएशन है, तो यकीन करें इस वक्त वहाँ पे चाइनीज़ की मंडी बनी हुई है, वहाँ पे इतना माल, इतना धागा है चाइना का, उसकी वजह से हमारी जो लोकल स्पिनिंग मिल्स हैं उनका माल सेल नहीं हो रहा। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल 1 में वाटर प्लांट ने हॉट वाटर प्लांट का रूप धार लिया। फिल्ट्रेशन प्लांट से निकलता गर्म पानी हलक से उतरना मुश्किल हो गया। डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल में आए शहरी ठंडा पानी की तलाश में भटकने लगे। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन फट पड़े, बोले गर्मी में भी ठंडा पानी नहीं मिलना तो इन वाटर प्लांट्स का क्या फायदा। इधर पानी ठंडा नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं वाटर प्लांट पर देख ले पानी गर्म ही है, ठंडा पानी नहीं है। अभी ऐसे एक में भी ठंडा पानी नहीं आ रहा, कई में तो है ही नहीं पानी, इनमें वो भी उधर भी लगा है, उनमें है गर्म पानी आ रहा है। आसमान से कहर ढाती सूरज, आग उगलती जमीन, गर्म लू के थपेड़े, क़यामत खेज गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री की हद को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 19 मई तक बरकरार रहने का इम्कान है। झंग में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में गैर कानूनी मवेशी मंडियों का कयाम रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक आज से 10 जून तक होगा। एलाइट अस्पताल 2 के एमरजेंसी ब्लॉक की रिवैम्पिंग सिविल वर्क सुस्त रवि का शिकार। एमएस का डिप्टी कमिश्नर महकमे बिल्डिंग को बरासला, कहते हैं कि एमरजेंसी ब्लॉक के लिए 10 करोड़ फंड बिल्डिंग हुकाम को दिए, कॉन्ट्रैक्टर ने काम मुकम्मल ना किए। जून 2025 से कबल तमाम फंड्स खर्च कराने की इस्तदा। तोबा टेक्सिंग में सड़कों का जाल बिछाने का मंसूबा, आइंदा माली साल के लिए सड़कों की तामीर की तफसीलात तैयार। हल्का पीपी 121 और 122 में 81 करोड़ से सड़कें तामीर होंगी। सड़कों की लंबाई 23 किलोमीटर से जायद है। 11 स्कीमों की तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। चिनियोट में लाहौर रोड पर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी, दोनों अतराफ टफ्टाइल लग गई, नए पौधे लगाए जाने लगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना है कि कोशिश है शहर की तमाम शाहराहों को खूबसूरत बनाया जाए। फैसलाबाद से लीगी रहनुमा शेख यूसुफ की कायद नून लीग से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ खुसूसी मुलाकात जाती अमरा में हुई। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख यूसुफ ने पार्टी कायद को फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। माली साल के आखिरी माह जून में फेस्को के हिसाब किताब की तैयारी शुरू। 53 लाख सार्फिन के बिलों की सालाना अदायगियों का रिकॉर्ड फेस्को हेडक्वार्टर ने तलब कर लिया। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल से रिकवरियों का रिकॉर्ड तलब किया। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन की बिजली खपत और बिलों की अदायगी का रिकॉर्ड तलब किया गया। फैसलाबाद में अकाउंटेंट ने सोलर कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया। एजेंसी प्लाजा में आदिल ने सोलर पैनल और इन्वर्टर फरोख्त की कंपनी बनाई। आदिल ने मुलजिम वकास अहमद को कंपनी में बतौर अकाउंटेंट मुलाजमत दी। मुलजिम वकास ने जाली रसीदें तैयार करके 1 करोड़ 52 लाख हड़प कर लिए। ऑडिट करवाने पर मुलजिम वकास की जालसाजी पकड़ी गई, मुकदमा दर्ज। इंचार्ज चौकी सब्जी मंडी मोहसिन बाजवा पर रिश्वत लेना साबित हो गया। डायरेक्टर कंवल खालिद ने मोहसिन बाजवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिम मोहसिन बाजवा को कल अदालत में पेश किया जाएगा। इश्तिहारियों, जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। सीपीओ बिलाल उमर की मीटिंग में अफसरान से गुफ्तगू, बोले मोबाइल अफसरान के मोबाइल में ई पुलिस ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। रोजाना अशखास और गाड़ियों को ई ऐप से चेक किया जाए। मोबाइल ऑफिसर डॉल्फिन और एलीट फोर्स और ईगल्स को अलर्ट रखने का जिम्मेदार होगा। सीपीओ फैसलाबाद के अपने दफ्तर में खुली कचहरी। बिलाल उमर ने साइलिन की शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। सीपीओ का कहना था कि शहरियों की दादरसी और अवलीन तरजीह है। मुकदमात के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रोबोटिक सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नई अल्ट्रासाउंड मशीन नस्ब। DHQ में अल्ट्रासाउंड मशीनों की तादाद 5 हो गई। नई मशीन के बायस गायनी OPD में मरीजों को सहूलत मिलेगी। फैसलाबाद के 4 बड़े अस्पतालों को मुस्तकिल सरबराह मिल गए। डॉक्टर फहीम यूसुफ MS अलाइड अस्पताल 1 तैनात, डॉक्टर जफर इकबाल की बतौर MS अलाइड अस्पताल 2 तैनाती, डॉक्टर आमिर नवीद MS चिल्ड्रन अस्पताल मुकर्रर, डॉक्टर राना नदीम FIC की मुस्तकिल सरबराही करेंगे। डॉक्टर जुहेब हसन ने DHQ अस्पताल चिन्योट में MS का चार्ज संभाल लिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात पहली शिफ्ट में तलबा से इकनॉमिक्स, बैंकिंग और कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया गया। दूसरी शिफ्ट में तलबा ने फलसफे का पर्चा दिया। मैट्रिक के तलबा की तालीमी सेशन में वक्त कम, सिलेबस ज्यादा। प्राइवेट स्कूल अलायंस ने गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप की इजाजत मांग ली। पैट्रन इन चीफ जाहिद भट्ट कहते हैं हुकूमत समर कैंप लगाने की इजाजत दे ताकि वालिदैन पर ट्यूशन का इजाफी बोझ न पड़े। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह कोंदल की चनाब कॉलेज आमद। तालीम के मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए वालिदैन से तजावीज़ ली। चनाब कॉलेज को डिवीजन का बेहतरीन इदारा बनाना तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तालिब इल्मों और असातिज़ा को स्पेशल कोर्सेज करवाए जाएंगे। गंदम की काश्त पर इमदादी रकम हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 31 मई तक तौसी। महकमा ज़राअत ने हेल्प डेस्क भी बना दिए। ज़रई पैदावार में बेहतरी लाने और मियारी बीज की काश्त को यकीनी बनाने का काम अयूब रिसर्च सेंटर के सपुर्द। रवां साल ही सर्टिफाइड बीजों की बड़ी मिकदार काश्तकार हासिल कर सकेंगे। अयूब रिसर्च सेंटर के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग बीज तैयार किया जाएगा। चिन्योट में किसान कार्ड कर्जे वापस जमा करवाने की तारीख में तौसी। काश्तकार 17 मई तक किसान कार्ड के वाजिबात जमा करा सकेंगे। बैंक ऑफ पंजाब हफ्ते को भी खुला रहेगा। भारत को नाको चने चबवाने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। जंगी हालात में सिविल सोसाइटी की आगाही के लिए शोरकोट की रॉयल इवेंट मार्की में सेमिनार। असिस्टेंट कमिश्नर शातिया रहमान समेत तहसील इंतजामिया, ताजिर बरादरी, उलमा किराम, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। झंग के पेन स्कूल में मार्काए हक के उन्वान से तकरीर। भारतीय जारीद के खिलाफ सीना सफर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। तलबा का मिली नगमे, टैबलोज और खाकों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। झंग जिमखाना क्लब के इंतखाबात। सेक्रेटरी जिमखाना के इंतखाब के लिए उमर खान समेत 5 मेंबरान के कागजात नामजदगी जमा। मेंबर BOG के लिए मलिक अजहर हुसैन समेत 8 मेंबरान के कागजात नामजदगी जमा हुए।